Hello, dear students. In today's session, we will learn Chapter 1 Chemical Reactions and Equations, Class 10th for CBSE Board Examination. Material shown here has been taken from Kendriya Vidyalaya Support Material. In this session, we will discuss about chemical reactions, chemical equations, balanced chemical equations, type of chemical reactions, for example, combination, decomposition, displacement, single and double displacement, endothermic reactions, exothermic reactions, reduction, oxidation reaction, redox reaction, and acidity. Here, first of all, we will discuss about physical change and chemical change. So, physical change are those changes in which no new substance is formed. Example, melting of ice. Melting of ice and boiling. For example, if you boil water, so molecule has same composition in water as well as in gas. When it become gas, water become gas, composition of molecule remains same as it was H2O in liquid state as well as in gaseous state. Next is no change occur in the identity of substance, means no new substance is formed during chemical change. Physical change, no new substance is formed. Chemical change, atoms in the reactant are rearranged and to form different substance, or you can say new substance are formed during a chemical change. New substance are formed during the chemical change. Old bonds are broken and new bonds are formed. For example, if you take Mg plus O2, so there are bond between two O, Mg plus O2, and you will get 2 MgO. 2 MgO. So bonds between oxygen are broken and new bonds are formed. So 2 Mg plus O2, 2 balance will put here, 2 Mg plus O2 gives 2 MgO. Reactants lose their property to form product of different properties. So new substances are formed with different properties. New properties are attained by substances. Now, what changes will you observe? Next question. This is important question. 2 mark question may be there. What changes do you observe during a chemical change? केमिकल चेंज जब होते हैं तो आपको कौन कौन से चेंजेस उसमें आपको ऑब्जर्व आप करते हो? तो कौन कौन से चेंजेस आप ऑब्जर्व करते हो? नंबर वन, चेंज इन स्टेट. For example, here you are taking solid Mg solid. When you burn magnesium ribbon, जब आप इसको बर्न करते हो, so you will get white powder of MgO. आपकी एक्टिविटी, फर्स्ट एक्टिविटी आपकी बुक में यही है, चैप्टर 1 में 1.1 एक्टिविटी. So here it was gas, it was solid, and you get different powder. So न्यू स्टेट, चेंज इन स्टेट अकर होती है बेटा. तो इसमें ऐसे भी एग्जांपल आ जाता है कि गिव एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन in which you observe change in state, in you observe change in color, in you observe evolution of gas, and which occur by temperature change. ये क्वेश्चन भी आ जाता है. गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच केमिकल रिएक्शन. यहाँ आ जाता है गिव केमिकल रिएक्शन विद एग्जांपल. इसमें से एक किसी का एग्जांपल पूछ सकते हैं या 3 का ही पूछ सकते हैं, चारों का ही पूछ सकते हैं. तो आपको एग्जांपल देना होता है. चेंज इन कलर. चेंज इन कलर का एग्जांपल कौन सा बेटा? लेड नाइट्रेट सोल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब एंड KI सोल्यूशन. ये आपकी एक्टिविटी 1.2 है. 1.2 एक्टिविटी चेंज इन कलर. टेक लेड नाइट्रेट सोल्यूशन. ये आपके कलरलेस सोल्यूशन होते हैं, लेड नाइट्रेट, एंड उसमें आप क्या डालोगे? KI सोल्यूशन. तो आपको क्या मिलेगा? लेड आयोडाइड के येलो PPT मिलेंगे. इसकी आपको इक्वेशन भी करनी है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन ये आपका क्वेश्चन है, 1 और 2 मार्क का आ जाता है. ठीक है, तो ये आपका नीचे भी दिया हुआ है. इसका आपका इक्वेशन, आपको पूरी पूरी इक्वेशन लिखनी है. लेड नाइट्रेट का आपको फॉर्मूला लिखना है और इक्वेशन लिखनी है. सब कुछ लिखना है इसमें. लेड आयोडाइड PbI2, लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस एक्वस
ये सारी इक्वेशन पीडीएफ अटैच है, उसमें भी दी हुई है और आगे भी मैं दोबारा समझाऊँगी। तो इक्वेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 1 और 2 मार्क की आती है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, ये आपकी एक्टिविटी आपकी ये 1.2 में आपकी है। तो क्वेश्चंस में बेटा जब एक्टिविटी में है तो अब एक्टिविटी ये नहीं सोचना कि अनइम्पोर्टेंट है, उसे छोड़ना है। ऑल एक्टिविटी यू हैव टू कवर। उसमें ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जैसे लेड आयोडाइड वाला है, ज़रूर आता है। येलो कलर के पीपीटी आपको मिलते हैं। ये सारे पीडीएफ में क्वेश्चंस दी हुई हैं, तो वहाँ से आपको पूरी करनी है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, ये आपकी एक्टिविटी 1.3 है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, व्हेन जिंक ग्रेन्यूल्स मीन्स छोटे-छोटे जिंक के पीस आर एडिड इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपकी क्या होती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड, तो क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी विच बर्न विथ पॉप साउंड। आपके कोर्स में एक ही गैस है, हाइड्रोजन गैस विच बर्न विथ पॉप साउंड, तो आप कहोगे गैस बर्न विथ पॉप साउंड। ये आपकी इसमें फाइल अटैच है, तो इसमें आपको मैं शो भी कर सकती हूँ ये सारी एक्टिविटीज। तो इसमें हम देख लेते हैं एक बार कैसे कैसे ये एक्टिविटीज आपकी हो रही है। ये इसमें फाइल में आपको अटैच कर दूंगी, ये वाली फाइल है। ऑल कलर इक्वेशंस ऑल हैज बीन गिवन हियर, सब कुछ दिया हुआ है इसमें। तो आपने प्रॉपर करना है, प्रॉपर सारा इसमें से करना है। सारे कलर दिए हुए, जो भी आपने करने हैं। विद क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन्ड है। ये लेड आपने इक्वेशन करनी है, लेड नाइट्रेट प्लस 2Ki लेड आयोडाइड येलो सॉलिड, इस कलर का मिलता है आपको, एंड KNO3। इन फाइल अटैच एक्टिविटी भी दी हुई है कि कौन सी एक्टिविटी है, तो इसमें से कोई भी आ सकता है। व्हेन जिंक ग्रेन्यूल्स रिएक्ट विद HCl और Zn, so H2 has gas is formed which burn with pop sound। आपके कोर्स में से ये गैस है जो पॉप साउंड के साथ जलती है, ये वाली एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी को आप ऐसे भी कर सकते हो, ये ऐसे भी कर सकते हो। एंड आफ्टर द रिएक्शन व्हेन यू टच द conical flask it become hot, so this is also example of exothermic reaction। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, क्योंकि जिंक ने HCl से क्या हटा दिया, हाइड्रोजन गैस हटा दी। टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाती है इस रिएक्शन में, तो ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, ये दोनों रिएक्शन। और इसमें क्या है, आफ्टर द रिएक्शन कलर ऑफ जिंक पीस, बेटा जिंक ग्रेन्यूल्स का पीस पूछ लेते हैं, सिल्वरी ग्रे कलर का होता है। तो आफ्टर द रिएक्शन एग्जाम में पूछ लेते हैं व्हाट विल बी द कलर ऑफ जिंक पीस, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स तक का आ सकता है। तो आफ्टर द रिएक्शन कलर ऑफ द जिंक पीस विल बी ब्लैक। तो आपको पूरा ढंग से प्रॉपर लर्न करना है, ये सारे जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको दे दिए हैं, इसमें अटैच कर दूंगी फाइल में। आपने इसमें से सारे देखने हैं, सारे मैं एक बार दिखा देती हूँ। ये सारे हैं। मैग्नीशियम D1 को सैंड पेपर से क्यों रब करते हैं, ये सारे इसमें हैं। बाकी वहाँ पे हम वहाँ से इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ से शॉर्ट समरी फास्ट हो जाएगी, तो इसलिए हम उसमें से कर रहे हैं, नहीं तो इसमें बहुत टाइम लगेगा करने में, इसलिए वहाँ से हो रहा है ये बैलेंस करके। एग्जाम्पल अगर पूछते हैं तो, a balanced chemical equation is a chemical equation in which number of atoms of each element is equal on both sides of the equation। इसके बाद आप इसको क्या करोगे, बैलेंस करके दिखाओगे। नेक्स्ट इज, फॉर एग्जाम्पल अभी दे आर सेइंग कि बैलेंस करके दिखाओ, ये इक्वेशन मेन है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन गेट इट इन योर एग्जाम। तो आपको ये वाली इक्वेशन, तो बेटा कभी भी आपको बैलेंस करनी है। To balance a chemical equation, first draw boxes around each reactant and product and do not make any change to it। एक बार आपने ये फॉर्मूला लिख दिया तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। चेंज कहाँ होगा, बस आप इसके आगे कुछ लिख सकते हो, आगे आगे नंबर 1 या 2 बैलेंस करने के लिए लिख सकते हो। इसके बाद इसमें कोई फॉर्मूले में चेंज नहीं होगा। स्टेप 2, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कितने आयरन है, आप ये लिखोगे 2, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो आप ऐसे शो करोगे आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आपके 3 ही एलिमेंट है। तो आप इसको यहाँ पे लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, रिएक्टेंट साइड में कितने हैं और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं। तो योर एम इज टू बैलेंस इट। तो आयरन रिएक्टेंट में कितने 1 है, यहाँ पर कितने 3 है। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने 1 है और यहाँ पर कितने 4 है। हाइड्रोजन 1 and 1। सो दिस इज अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, क्योंकि इक्वल नहीं है। टू मेक द इक्वल आपने सबसे बड़ा फॉर्मूला पिक करना है, ये वाला सबसे बड़ा फॉर्मूला है। तो कोशिश करो सबसे पहले जो आपका
ये फ़ॉर्मूला है, इसमें जैसे यहाँ 3 हियर वी हैव 3 तो यहाँ पे इसको 3 बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, आई विल पुट हियर 3, पुट हियर 3, नाउ आई हैव आयरन इक्वल, बोथ साइड आयरन आर इक्वल। नेक्स्ट आई विल टेक नेक्स्ट एटम, ये बैलेंस हो गया दोनों साइड। नाउ आई विल पिक O. Here I have 4 O. Here I have 1 O. To make both side O equal, I will put 4 here. 4 अगर मैं यहाँ लगाती हूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, 4O and 4O। यहाँ पे मेरे 4O हो जाएंगे एंड 4O हो जाएंगे। अब हाइड्रोजन देखो मेरे कितने हो गए, 4 एंड H2, कितने हाइड्रोजन हो गए, 8। यहाँ पे मेरे कितने हैं, H2 ओनली 2, तो आई विल पुट हेयर 4। तो आप इसको डिफरेंट स्टेप में भी लिख सकते हो, एक स्टेप में भी कर सकते हो नंबर। अगर कहेंगे शो ऑल स्टेप तो आपको स्टेप वाइज दिखाना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस आयरन, सेकंड स्टेप में दिखाओगे बैलेंस ऑक्सीजन, थर्ड स्टेप में दिखाओगे बैलेंस हाइड्रोजन। सो अब आपके अब यहाँ पे हाइड्रोजन इस साइड कितने हैं, 8। अब आपके कितने हो गए, 8, और यहाँ पर भी कितने हो गए, 8। सो एटम्स ऑन बोथ साइड आर इक्वल, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। नाउ यू कैन से दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड इक्वेशन। और अगर आपको एक बार करके सही नहीं आई तो आपने घबराना नहीं है, आपने दोबारा ट्राई करना है। दिस मेथड इज नोन एंड हिट एंड ट्रायल मेथड, कि गलत आए तो घबराना नहीं है, आपने दोबारा करना है। सो स्टेप्स इन्वॉल्व इन केमिकल इक्वेशंस, तो आपको कैसे इन्वॉल्व होगा, तो ये सारे स्टेप आपके आएंगे। इस सिंपल वे में आप कर सकते हो इसको बैलेंस्ड। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई टाइप ऑफ रिएक्शन, तो डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस या आइडेंटिफाई। जैसे इसमें से एमसीक्यू में आ सकता है क्वेश्चन, एमसीक्यू में आ सकता है, असर्शन रीजनिंग में आ सकता है, या एग्जाम्पल पूछ सकते हैं कि गिव द एग्जाम्पल ऑफ ईच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन, किसी का भी पूछ सकते हैं। तो वन बाय वन वी विल डिस्कस। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बेटा इसमें क्या होता है, ए प्लस बी दो चीजें कंबाइन करके थर्ड चीज बना लेती हैं। टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, इट मे बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन, जहाँ पे दोनों एलिमेंट है, एलिमेंट कंपाउंड कॉम्बिनेशन, जहाँ पे एक कंपाउंड है वहाँ पे एक एलिमेंट है, एंड कंपाउंड कंपाउंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे आपका क्विक लाइम वाटर से रिएक्ट करता है, तो आप स्लेट लाइम कर दो, ज़्यादा पानी डाल दोगे तो आपका लाइम वाटर बन जाएगा। तो नंबर 1 कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आपको बहुत सारे रिएक्शन भी दे सकते हैं, 1 2 3 4 एमसीक्यू में रिएक्शन दे दिए। इसमें कहेंगे रिएक्शन 1 इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वाई, तो उसका रीजन दे देंगे, बिकॉज 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यहाँ आइडेंटिफाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन फ्रॉम द रिएक्शन गिवन बिलो। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन के मैं आपको प्री बोर्ड के पेपर नीचे बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो आप वहां से उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन में क्या होगा, वन सिंगल सब्सटेंस विल ब्रेक इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट। सिंगल कंपाउंड डिकम्पोज और ब्रेक डाउन टू गिव 2 और मोर सिंपल सब्सटेंसेस। एक चीज टूटेगी और आपको 2 या 3 चीजें मिल जाएंगी, 1 2 3, 1 2 3। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में बेटा आपके डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल एनसीईआरटी में सारे करने हैं, कोई छोड़ना नहीं है। इसमें आपका है लेड नाइट्रेट वाला भी करना है एग्जाम्पल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं, बुक में से लिए हुए हैं, एनसीईआरटी की है ना, ये सारा केंद्रीय विद्यालय की बुकलेट है। नंबर 1 फेरस सल्फेट क्रिस्टल, व्हेन यू हीट फेरस सल्फेट क्रिस्टल, इसका बेटा इसका नाम ग्रीन विट्रियोल भी होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, FeSO4.7H2O। यहाँ पर इन्होंने ब्रेक करने के बाद लिया है, तो ये आपका 7H2O में ग्रीन होता है, जब FeSO4 हो जाता है तो व्हाइट हो जाता है। ये हीट करोगे तो आपको ब्राउन कलर के Fe2O3 मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है आपको। तो बेटा इसमें कलर पूछेंगे किस कलर का मिला है, ब्राउन कलर का Fe2, रेडिश ब्राउन कलर का Fe2O3, जैसे जंग का कलर होता है, रस्ट का कलर, वैसा SO2 and SO3 गैस मिली है। समटाइम्स दे कैन आल्सो आस्क द नेम ऑफ गैसेस, ठीक है, इनका कंपाउंड का नाम पूछ लेते हैं, कलर पूछ लेते हैं। तो आयरन थर्ड ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब इसमें सल्फर डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी क्या होती है, टर्न्स एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन, जो ऑरेंज होता है उसको ग्रीन में चेंज कर देता है ये। अगर आप यहाँ पे ऑरेंज कलर का ही सोल्यूशन लोगे, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो इसमें से SO2 गैस पास करोगे,
सो इट विल टर्न SO2 गैस इसमें पास करोगे, क्या हो जाएगा, ग्रीन में चेंज हो जाएगा। ऐसे ही एक आपका एग्जांपल दिया हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 गैस। लेड नाइट्रेट ऑन हीटिंग गिव लेड ऑक्साइड, वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ब्राउन फ्यूम्स एंड ऑक्सीजन। तो बेटा पूछते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन व्हाइट कलर सॉलिड लेड नाइट्रेट इज हीटेड। तो आप कहोगे वी विल गेट लेड ऑक्साइड, ब्राउन कलर NO2 गैस। NO2 गैस को कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, बाय इट्स ब्राउन कलर। एन ऑक्सीजन गैस, वो पूछेंगे ऑक्सीजन गैस को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, इसका टेस्ट ये लिखा हुआ है, हाउ विल यू आइडेंटिफाई ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन गैस को क्या करोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहाँ हीट कर रहे हो तो ऑक्सीजन गैस निकली, तो आप क्या करोगे, ग्लोइंग स्प्लिंट नियर द टेस्ट ट्यूब। तो स्प्लिंट क्या करेगी, आप जैसे आपकी इंसेंस स्टिक होती है, अगरबत्ती होती है, ग्लोइंग अगरबत्ती लाओगे तो यहाँ से अगर ऑक्सीजन गैस निकल रही होगी तो इट विल स्टार्ट टू ग्लो, ये फ्लेम के साथ ग्लो करने लग जाएगी, ज़्यादा जलने लग जाएगी। तो टेस्ट ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कलर से पहचान में आएगी आपका। ठीक है, तो ये आपका सारा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों में से एक बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन है। इक्वेशन लर्न करनी है, वैसे भी पूछ लेते हैं कई बार स्टेटमेंट बेस्ड। व्हेन ए ग्रीन कलर क्रिस्टल ऑफ green vitriol or ferrous sulfate are heated, they give two gases. Two gases B and C. One of the gas turns acidified potassium dichromate solution green. Identify the substance A, B, C. इसको भी स्टेटमेंट बेस, हर क्वेश्चन को आपने स्टेटमेंट बेस के फॉर्म में भी करना है। When limestone is heated, two product A and B and C are formed. C is gas and also turns lime water milky. Identify the B and C and write equation for the reaction. इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ऐसे लेड नाइट्रेट का ABC करके पूछ लेंगे कि ब्राउन कलर गैस है निकली है, C आइडेंटिफाई द गैस, हाउ विल यू टेस्ट D गैस, ABCD स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सारे आपने करने हैं। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन बेटा आपके कौन कौन से 3 टाइप के हैं। नंबर 1 थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन एंड फोटो डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन में आपके 3 एग्जांपल यहाँ दिए हुए हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन में 3 एग्जांपल है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में 1 एग्जांपल है, अब फोटो डिकम्पोजिशन में 2 एग्जांपल है। 1 2 3 4 5 6 anyone can be there of 2 marks in your examination, so it is very important to learn all questions. इसमें से आपने कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है कि नहीं जी मेरे से याद नहीं हो रहा, मैंने नहीं करना, सब करने हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन इसकी एक्टिविटी है, वो तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो वाटर की जब इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो इट ब्रेक डाउन इनटू 2H2 एंड O2। सबसे पहले ये 2 टेस्ट ट्यूब है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर होगा, ये आपका टेस्ट ट्यूब के साथ इलेक्ट्रोड है कैप में। ये एक्टिविटी है तो इम्पोर्टेंट है, पूछ लेते हैं। ये बैटरी से अटैच है, बैटरी से अटैच है बेटा ये। तो 1 इज कैथोड, 1 इज एनोड। तो कैटायन आपके कैथोड में जाते हैं, फॉर एग्जांपल एक कैटायन हो गया, कैथोड पे जाएगा। ये हेयर कैथोड इज नेगेटिव हेयर एंड दिस इज एनोड। एनोड हो गया आपका, ये कैथोड हो गया, कैथोड नेगेटिव होता है यहाँ पे कैथोड। तो साइन ऑफ कैथोड क्या हुआ ये पूछ लेंगे, कैथोड आपका नेगेटिव हो गया, कैथोड इज नेगेटिव हेयर। So when electrolysis is done, water will decompose and hydrogen is collected over cathode. तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया एंड ऑक्सीजन इज कलेक्टेड ओवर एनोड। यू कैन सी हाइड्रोजन का अमाउंट देखो ज्यादा है यहाँ पर कैथोड पर और ऑक्सीजन का अमाउंट कम है। नंबर 1 क्वेश्चन यही होगा कि रेशो क्या है इनकी, एट विच इलेक्ट्रोड दे गेट कलेक्टेड। तो ये कहाँ कलेक्ट होगा, कैथोड पर, ये कहाँ होगा, एनोड पर। तो इनकी रेशियो क्या होगी, 2:1। वाई ऐसी 2:1 क्यों होगी, बिकॉज इन वाटर हाइड्रोजन 2 एटम्स है एंड ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो हाइड्रोजन गेट डबल, रेशियो ऑफ हाइड्रोजन इज कलेक्टेड डबल एज द कंपेयर टू रेशियो ऑफ ऑक्सीजन। फिर इसमें कहते हैं कि इसमें थोड़ा सा एसिड भी मिला देते हैं,
H2SO4 एसिड भी मिला देते हैं करते हुए। क्यों मिलाते हैं? टू मेक द प्रोसेस फास्ट। H2S एसिड मिलाने से इसमें H2SO4 या HCl प्रोसेस फास्ट हो जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस। तो ये क्वेश्चन भी है कि क्यों मिलाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपने करने हैं। यहाँ छोटा सा लग रहा है लेकिन एक्टिविटी के सारे क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट इज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। अगर हम AgCl को सनलाइट में रख दें, दिस इज सनलाइट, या AgBr को, यहाँ AgBr वाली इक्वेशन नहीं दी हुई तो मैंने लिख दी है। दोनों इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछ लेंगे। इट विल ब्रेक इनटू, दिस इज व्हाइट, दिस इज लाइट येलो, पेल येलो कलर। तो ये जब आपका ब्रेक होगा इट विल गिव सिल्वर ग्रे कलर Ag। और क्लोरीन गैस क्या होती है? कलरलेस। तो आपसे पूछ सकते हैं कि गैस का कलर क्या है। तो एक सनलाइट में ब्रेक हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगेन AgBr जब सनलाइट में रखते हैं तो इट विल गिव Ag and Br2। हाउ विल यू आइडेंटिफाई गैस? देखो पेल येलो कलर कंपाउंड is kept in sunlight, it will give gray color compound B and a brown gas C. This reaction is also used in black and white photography। इन्होंने AgBr के बदले रिएक्शन दे दिया कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। आइडेंटिफाई ABC। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। एंड आइडेंटिफाई, राइट द इक्वेशन फॉर इट। सनलाइट इज नेसेसरी फॉर दिस रिएक्शन। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर में दिए होंगे केंद्रीय विद्यालय में या और किसी, तो वो सारे करने हैं। मेनली स्टेटमेंट बेस्ड ही आते हैं बेटा, एक्टिविटी बेस्ड, स्टेटमेंट बेस्ड। तो ये एक्टिविटी भी है आपकी बुक में, तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आप कह लो कि आएंगे। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपका मेन आपका ये आता है, व्हेन आयरन नेल इज पुट इन ब्लू कलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो इसमें स्टेट लिखनी है, कॉपर सल्फेट का कलर याद रखना है। सो इट गिव CuSO4 solution, it give green color FeSO4 and copper is deposited on iron nail। ये एक्टिविटी आपकी बुक में है, तो इसका नाम कह सकते हैं ब्लू विट्रियोल, इसका नाम है ग्रीन विट्रियोल। कलर ऑफ आयरन नेल बिफोर रिएक्शन, कलर ऑफ आयरन नेल आफ्टर रिएक्शन। तो कॉपर जब डिपॉजिट हो जाता है तो कॉपर इस पर डिपॉजिट हो जाएगी आफ्टर द रिएक्शन, तो इसका आयरन नेल का कलर रेडिश हो जाएगा, रेडिश ब्राउन, और कुछ कॉपर नीचे भी डिपॉजिट हो जाएगी। कलर ऑफ रिएक्शन, कलर ऑफ टेस्ट ट्यूब आफ्टर द रिएक्शन ग्रीन हो जाएगा। व्हाट ऑब्जर्वेशन यू ऑब्जर्व आफ्टर द रिएक्शन? तो FeSO4 ग्रीन हो जाएगा कलर। इसमें क्वेश्चन और आता है, व्हाट विल बी द कलर ऑफ सॉल्यूशन इमीडिएटली आफ्टर पुटिंग आयरन नेल इन FeSO4 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, CuSO4 सॉल्यूशन, एक्वस। यहाँ पे एक्वस लिख लो आप, एक्वस सॉल्यूशन है तो एक्वस लिख लो, ठीक है। यहाँ पे सॉलिड लिख लो, यहाँ पे सॉलिड, यहाँ पर एक्वस, और यहाँ पे क्या लिखोगे? सॉलिड। तो इमीडिएटली क्या होगा? नो कलर चेंज। आफ्टर 5 मिनट कलर चेंज होता है, तो आप इस बात का ध्यान रखना। इसके बेस क्वेश्चन जरूर आते हैं, बिकॉज हेयर आयरन ने कॉपर को हटा दिया है, तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अपनी प्लेस से हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया है। अगेन Fe और जिंक सल्फेट सोल्यूशन में डालोगे तो जिंक सल्फेट सोल्यूशन कलरलेस है, कलरलेस, तो कलर क्या हो जाएगा? लाइट ग्रीन। FeSO4 का कलर तो हमेशा लाइट ग्रीन ही रहेगा, लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कोई भी आ जाएगा तो इसके बेस क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करनी है। कलर बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन पूछते हैं, तो जिंक सल्फेट का कलर भी लर्न कर लो, बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट का कलर आप लर्न कर लो, ये जरूर आता है मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में। व्हाइट, लेड आयोडाइड का बता ही दिया, येलो, दिस इज ब्लू, ब्लू विट्रियोल, ब्लू कलर, कॉपर सल्फेट, FeSO4। नेक्स्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन प्लस एग्जांपल, डेफिनेशन प्लस एग्जांपल, कुछ भी आ सकता है। Aqueous solution of two ionic compound react by exchange of their ions। तो दो सोल्यूशन अपना आयन एक्सचेंज करते हैं, इट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एग्जाम में आ सकता है 1 और 2 मार्क का, मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल गेट इन एग्जाम। व्हेन BaCl2 aqueous solution, ये दोनों बेटे कलरलेस होते हैं। एक कलरलेस सोल्यूशन लिया BaCl2, दूसरा लिया Na2SO4।
तो आपसे ऐसे पूछ लेते हैं, व्हेन ए कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ BaCl2 इज एडेड इन अदर कलरलेस सॉल्यूशन B, आप इन्होंने बस ए का दिया नाम, बी का नहीं दिया, इसका दिया है। व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट ऑफ BSO आर फॉर्म्ड, इसको उन्होंने कह दिया व्हाइट कलर, ये व्हाइट पीपीटी बनते हैं। आइडेंटिफाई व्हाइट पीपीटी एंड राइट द इक्वेशन, जहां इन्होंने BaCl2 दे दिया, इसमें दे दिया व्हाइट पीपीटी। तो BaCl2 में आपके कोर्स में BSO4 ही है, आपने ये करना है BSO4 बनाए और पूरी इक्वेशन लिखनी है, राइट द इक्वेशन। ये भी कहते हैं राइट द स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं और नहीं लिखते, तो 1 मार्क का हो गया आइडेंटिफाई, 1 मार्क का हो गया राइट द इक्वेशन एंड 1 मार्क हो गया राइट द स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो ये क्वेश्चन में बी ऑफ 2 मार्क और 3 मार्क, 1 हाफ हाफ करके या 1 करके 3 मार्क्स का तक, 2 या 3 मार्क्स 1 का भी हो सकता है। ऐसी लेड नाइट्रेट व्हेन रिएक्ट विद KI, ये आपका एक्टिविटी 1.2 है इसी चैप्टर का। तो येलो पीपीटी ऑफ लेड आयोडाइड आर फॉर्म्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्योर शॉर्ट है, आएंगे ये। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल अकेला नहीं होता, ये इसकी डेफिनेशन है, दे टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इन द सेम रिएक्शन। अदरवाइज इसकी डेफिनेशन आपने करनी है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसमें डेफिनेशन आएगी प्लस एग्जाम्पल आएगा। यहाँ ये कहेंगे कि जैसे रिएक्शन दे दिया कि वाई दिस रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो आप कहोगे एज ऑक्सीजन इज बीइंग एडेड इन दिस रिएक्शन टू मैग्नीशियम, सो इट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये एग्जांपल दे दिया। आजकल डायरेक्ट स्टेट क्वेश्चन तो देते नहीं है, ट्विस्ट कर देते हैं कि वाई दिस रिएक्शन इज रिडक्शन रिएक्शन, आप कहोगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन, तो आप कहोगे बिकॉज ऑक्सीजन हैज बीन रिमूव्ड, तो रिडक्शन है। और रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस। अभी देखो आपको इसमें पूछेंगे इन दिस रिएक्शन नेम द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, तो आप क्या कहोगे, नेम जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीडाइज हो गया, नेम द सब्सटेंस रिड्यूस्ड, नेम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड नेम रिड्यूसिंग एजेंट। शॉर्ट क्वेश्चन है, ये जरूर आता है। 1 3 है आपकी बुक में, एनसीईआरटी में 1, दूसरा ये है सेकंड जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन वाला, थर्ड ये है। इसमें भी जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन में दिस इज ऑक्सीजन हटी तो आपका रिडक्शन हो गया, हेयर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो ऑक्सीडेशन हो गया, यहाँ पे यहाँ से कार्बन इज बीइंग ऑक्सीडाइज, पूरा कहोगे जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस टू जिंक। आपने जिंक नहीं करना, जिंक इज रिड्यूस टू जिंक नहीं, पूरा बोलोगे, नहीं तो नंबर नहीं आएगा। जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस टू जिंक, कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन मोनोऑक्साइड। नेम पूछा तो नेम लिखोगे, सिंबल लिखा है तो सिंबल लिखोगे। और इसमें आपका ये भी होगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है बेटा वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इसमें ओ के साथ आर आता है, तो आर के साथ ओ आता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो ये प्रॉपर करने हैं लर्न, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों में से एक जरूर आएगा बोर्ड में। नेक्स्ट है MnO2 वाले में, विच वन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड विच वन इज गेटिंग रिड्यूस्ड एंड वाई। तो आप कहोगे MnO2 लूज ऑक्सीजन, सो देयर इट इज रिड्यूस्ड टू MnCl2 एंड इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और HCl में क्या हो गया, HCl loses हाइड्रोजन, सो इट इज ऑक्सीडाइज। तो ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा हुआ है, पूछते भी हैं, ये स्टेटमेंट आपने जरूर लर्न करनी है, अनइम्पॉर्टेंट समझ के छोड़नी नहीं है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। रेडॉक्स रिएक्शन की भी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की भी, रिडक्शन की भी, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक एंड न्यूट्रलाइजेशन हमारा रह गया। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड, फॉर एग्जांपल इफ कार्बन इज बर्न इन ऑक्सीजन, तो आपको क्या मिलेगा, CO2 और हीट। तो जैसे बर्निंग ऑफ कोल, कितनी गर्मी आपको हीट निकलती है उसमें से बर्निंग ऑफ कोल में, तो दिस इज आल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिस भी रिएक्शन में हीट निकलेगी तो उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ LPG, कुकिंग गैस, तो उसमें आपकी हीट निकलती है बर्नर में से गैस, जब मम्मा खाना कुक करती हैं तो इज दिस एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यस। बर्निंग ऑफ CNG, इज दिस एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हाँ जी है। CNG बायोगैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यूज्ड इन व्हीकल्स, इनके यूजेस भी आपने करने हैं। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यूज्ड इन कुकिंग cylinders used for cooking and it is also exothermic reaction.
बर्निंग ऑफ मीथेन, ये सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो किसी का भी पूछ सकते हैं। सीएनजी बर्निंग ऑफ मीथेन का करना है अपने रिएक्शन, लिख के लर्न करना है, और इनका ही पूछना है अदर एग्जाम्पल। एंडोथर्मिक आपको बताई दिया। एंडोथर्मिक जो होगा आपका सनलाइट, जैसे फोटोसिंथेसिस, सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। फोटोसिंथेसिस में किस चीज़ की रिक्वायर होती है? सनलाइट की। तो जिसमें हीट रिक्वायर्ड है वो आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। एजीसीएल ब्रेक हुआ था, उसमें आपका सनलाइट की रिक्वायरमेंट थी, जिसमें हीट करके रिएक्शन होता है। हीट या लाइट की जरूरत होती है, तो आपका एंडोथर्मिक होता है। यहाँ दिया नहीं हुआ, यहाँ ऊपर होगा तो आप उसमें लर्न करना है। एंडोथर्मिक आपने छोड़ना नहीं है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, व्हेन एन एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दिस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो कोई भी एसिड और बेस सॉल्ट और वाटर बनाता है तो इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज वाई केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। अब हमने ऊपर इतनी सारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस करी हैं, तो कह रहे हैं हम क्यों बैलेंस कर रहे हैं, बैलेंसिंग हम कर ही क्यों रहे हैं, ठीक है। तो वाई केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड, तो हम बताओ क्यों कर रहे हैं। टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि ये कहता है इन ए केमिकल रिएक्शन नथिंग कैन बी प्रोड्यूस्ड एंड नथिंग कैन बी डिस्ट्रॉय। मेटल इज कंजर्व्ड, कुछ ना प्रोड्यूस होते हैं ना डिस्ट्रॉय होते हैं। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो टू ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वी शुड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इसका आंसर है ये, वाई शुड वी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। टू ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वी शुड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब बेटे अभी आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन पढ़ा है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का आपकी डेली लाइफ में क्या इफेक्ट होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का। जैसे ऑक्सीडेशन हुआ तो ऑक्सीडेशन में रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो इसमें हमारा डेली लाइफ में क्या इफेक्ट होता है। ये हमारे दो मेन हमारे होते हैं चीजें डेली लाइफ में। नंबर वन, रेंसिडिटी। फॉर एग्जांपल इफ यू कीप फूड ओपन फॉर सम टाइम, नॉट इन फ्रिज, नॉट प्रिजर्व्ड इन पैकेट, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इट विल गिव बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट। सो ये किसकी वजह से हो रहा है, ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके हो रहा है। दूसरा है आयरन। आयरन क्या कर रहा है, ये भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करके Fe2O3 डॉट XH2O रस्ट बना लेता है, रस्ट बना लेता है। तो ये सारे क्या है, एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन डेली लाइफ। तो ये बेटा ऑक्सीडेशन का रिएक्शन कई डेली लाइफ में एग्जाम्पल है। रेंसिडिटी एंड दूसरा आपका क्या हो गया, रस्टिंग। तो रेंसिडिटी की डेफिनेशन बच्चे रस्टिंग में रेंसिडिटी लिखाते हैं, रस्टिंग में, और रेंसिडिटी में रस्टिंग लिखाते हैं। तो प्रॉपर्ली करनी है। रेंसिडिटी मीन्स खाने का खराब होना, सड़ना गलना, तो हमको प्रॉपर लिखना है। ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल और फैट इन फूड रिजल्टिंग इनटू बैड स्मेल और टेस्ट इज नोन एज रेंसिडिटी। हाउ विल यू प्रिवेंट, राइट टू मेथड और 3 मेथड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। तो आप कैसे लिखोगे, एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन। तो खाने को अगर आप खुला छोड़ोगे तो ऑक्सीजन अंदर जाएगी तो वो खाने को अटैक करेगी। तो उसमें कंपनी क्या करती है, ऑक्सीजन निकाल के इसमें क्या भर देते हैं, नाइट्रोजन भर देते हैं चिप्स के पैकेट में। तो इट विल प्रिवेंट फूड फ्रॉम ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन इसमें फिल कर दी तो आपका डेंसिटी नहीं होगी। रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड स्टेप, फूड को आपने रेफ्रिजरेटर में रख दिया, फ्रिज में रख दिया तो खाना खराब नहीं होगा। स्टोरिंग द फूड इन एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर में रखोगे तो ऑक्सीजन विल नॉट रिएक्ट विद फूड, सो इट विल नॉट स्पॉइल्ड और रेंसिड। तो रेंसिडिटी क्या है, हाउ टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। नेक्स्ट, कोरोजन। कोरोजन में आपके लिए बेटा सबके करने हैं, कोरोजन ऑफ आयरन, कोरोजन ऑफ सिल्वर, कोरोजन ऑफ कॉपर, सबका करना है। किसकी प्रेजेंस में होता है, फैक्टर्स विच कॉजेज एंड इनका प्रिवेंशन, प्रिवेंशन क्या करोगे। और इसका डेली लाइफ एग्जांपल, जैसे आयरन का हो गया रस्टिंग ऑफ आयरन, आपकी आयरन ग्रिल हो गई, बिल्डिंग हो गई। सिल्वर का हो गया ज्वेलरी, ज्वेलरी बिकम ब्लैक। फैक्टर कौन कौन से हैं आयरन के में, इसमें रस्टिंग के लिए H2O एंड O2, मॉइस्चर या एयर या वाटर एंड ऑक्सीजन। सिल्वर के लिए हो गया H2S गैस। कॉपर के लिए हो गया ये दोनों चीजें प्लस CO2। कॉपर में वाटर या मॉइस्चर कह लो, ऑक्सीजन एंड CO2। तो फैक्टर हैं जो इसको करते हैं। व्हाट आर द फैक्टर विच कॉजेज कोरोजन ऑफ आयरन, सिल्वर एंड कॉपर। तो इनके फॉर्मूले करने, कलर करना है। तो इसका फॉर्मूला
इसका फॉर्मूला इसमें Ag2S ब्लैक कलर का बन जाएगा। इसमें आपकी रस्टिंग का फॉर्मूला लिख दिया। कॉपर का हो जाएगा बेसिक कॉपर कार्बोनेट, इसका कलर हो जाएगा ग्रीन। इसका फॉर्मूला भी करना है बेसिक कॉपर कार्बोनेट का। तो पहले कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाओगे और उसमें 6H2O जोड़ दोगे तो बेसिक कॉपर कार्बोनेट बन जाएगा। इसमें इसमें X का मतलब 5 to 8 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इसमें होते हैं, तो आप X में कुछ भी शो कर सकते हो। Fe2O3.5H2O, कोई बच्चा शो कर सकता है Fe2O3.6H2O। तो रस्ट का कलर फॉर्मूला, तो रस्ट के बेस्ड क्वेश्चन ये है व्हाट इज कोरोजन। तो रस्ट डैमेजिंग ऑफ एनी, ईटिंग अवे ऑफ एनी मेटल, कोई भी मेटल खराब हो रही है, किसी भी मेटल की बात करें तो हम कोरोजन कहेंगे। इट नोन एज कोरोजन इन प्रेजेंस ऑफ एयर, एसिड, ऑक्सीजन, वाटर। तो पूरी डेफिनेशन लिखोगे। व्हाट इज रस्टिंग, व्हेन आयरन गेट corroded in the presence of water and oxygen, it is known as rusting. And blue flakes, reddish brown flakes come on the surface of iron. Its color and formula, reddish brown color formula आपका ये लिख दिया। How rusting can be prevented, तो rusting can be prevented by galvanization, oiling, painting, ठीक है। एनोडिक प्रोटेक्शन, कोई मोर एक्टिव मेटल आयरन से लगा देते हैं, जैसे आयरन की पाइप अगर गलने वाली है तो मैग्नीशियम लगा देंगे मोर एक्टिव मेटल, तो आयरन से पहले वो सैक्रिफाइस हो जाएगी, इसको बोलते हैं सैक्रिफिशियल एनोड या एनोडिक प्रोटेक्शन ऑफ आयरन। डिस्कस मेन फैक्टर विच कॉजेज रस्टिंग, तो फैक्टर आपके ये हो गए एयर एंड वाटर और ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, कुछ भी आप लिख सकते हैं इसमें से। डिस्कस कोरोजन ऑफ कॉपर एंड कोरोजन ऑफ सिल्वर। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमने आज डिस्कस करे हैं। इसके अलावा आपने करने एनसीईआरटी के टेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, सैंपल पेपर जो केंद्रीय विद्यालय के या आपके जो भी सैंपल पेपर आपने लिए हैं वहां से प्रैक्टिस कीजिए। एंड इसमें बाकी मैं एक पीडीएफ भी डाल दूंगी, इसके शॉर्ट नोट्स प्रॉपर एक और भी बनाए हुए, वेयर आई हैव गिवन कलर ऑफ द थिंग्स, ऑल द थिंग्स, जिसमें मैंने कलर दिया हुआ है। सो थैंक यू एंड